What is the answer of this question? Could you solve it? For open pipe, F is equal to V by F is given, है ना? F is the fundamental frequency given. Fundamental frequency is given F. Therefore, F will be equal to V by 2L. Now it has become closed pipe. Itna of length L by 2. All right. Now it is closed pipe of length L by 2. Its fundamental frequency will be F1 dash will be same. L dash has become L by 2. This is V by 2L. V by 2L is nothing but same F only. So fundamental frequency remains same. Length आधी हो गई ना? Length कम होने से close pipe करने से frequency half हो जाती है. But if you reduce the length, it will increase and come back to same value which was for open pipe. So answer is B. So इसमें they may change it. They may give, okay, 1/4 of the length is submerged or 3/4 of the length is submerged. Then you get the value of V by L will be 2F. V by L निकाल के पुट कर देना, उसमें जहां भी V by L दिखेगा पुट कर दो. 3/4 समझ किया या 1/4 समझ किया या 60% समझ किया या 90% समझ किया. That changes may be there. Are you getting it? Clear? Okay. We see further. Now we are going to see the phenomena of beats. Beat phenomena is when the two sound waves of nearly same frequency superimpose at any point, there is regular rise and fall of the sound called waning and waxing. Rising को waning बोलते हैं, waxing को falling को waxing बोलते हैं. So when two waves of nearly same frequency superimpose each other, there is a regular rise and fall. Nearly same frequency. Frequency difference should be within 10. So there is regular rise and fall of the sound called waning and waxing. All right. So what is the use of this phenomena? In fact, when beat phenomena is used by artists to tune their musical instruments in orchestra. When the orchestra is starting, they tune their
all their instruments, they tune them till no beats are heard. जो extra sound सुनाई पड़ती, this is the extra sound of regular rise and fall apart from their normal sound. That should not be audible. Otherwise, the whole music system will be disturbed with the extra sound. So they tune their musical instruments till no beats are heard. Either they increase the frequency or decrease the frequency. Either they will make it zero difference, frequency difference, or they will make the frequency difference large, so that beats cannot be heard. When they are more than 10, then difficult to distinguish by the human ears. क्यों ऐसा होता है? बिकॉज मैंने बताया था पल्स जो है 0.1 सेकंड के बाद आनी चाहिए, पल्स सेकंड नॉइस. तो टाइम डिफरेंस इज लेस देन दैट, तो वी कैन नॉट मेक आउट द एक्स्ट्रा साउंड. ठीक है, तो टू वेव्स है, फ्रीक्वेंसी difference should be less than 10, then you can make out the regular rise and fall phenomena, that is called beat phenomena. ठीक है, तो one of the uses is to tune the tuning of the instruments in orchestra, and other uses finding out the unknown frequency of the tuning fork that we see in numericals and so on. Now let us see the theory behind it. Suppose two sound waves superimpose at origin. यहाँ पे x0 ले लिया हमने, तो वेव्स में x वाला टर्म माइनस की x वाला टर्म जो है वो 0 हो जाएगा. इक्वेशन विल बी सिंपल. तो टू वेव्स आर गिवन बाय y1 is equal to a sin omega 1t and y2 is a sin omega t. फ्रीक्वेंसी डिफरेंस है. देखो अभी तक हम सेम फ्रीक्वेंसी ले रहे थे, नाउ दे आर डिफरेंट हियर. ऐड कर दिया, उनको सुपर इम्पोज कर दिया, y1 प्लस y2 a कॉमन लिया, sin a प्लस sin b, 2 sin a प्लस b by 2 into cos a minus b by 2. तो माइनस वाला टर्म इधर लिख दिया आगे और प्लस वाला इधर शिफ्ट कर दिया. ये फ्रीक्वेंसी डिफरेंस वाला टर्म हमें सुनाई पड़ता है. प्लस वाले में तो फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है, तो वी कैन नॉट मेक आउट. बट जो फ्रीक्वेंसी डिफरेंस है ये लेस देन 10 का, दैट वी आर एबल टू मेक इट, वी आर एबल टू हियर इट. ठीक है, यहाँ पे साइन ए प्लस साइन बी के फार्मूले से साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2, विच वी डिड इन द प्रीवियस डेरिवेशन. स्टैंडिंग वेव्स में भी किया था. तो नाउ दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ, दिस इज द एम्पलीट्यूड, यहाँ पे टी है, दिस इज टी ओनली. ये पूरा टर्म होगा इनफैक्ट. दिस विल बी टर्म लाइक दिस, दिस विल बी टर्म लाइक दिस. ठीक है, तो वैक्सिंग और वेनिंग डिपेंड्स अपॉन द टर्म दिस वन, डिफरेंस वाला. Intensity is 0 when this term is 0, and maximum when this term is plus minus 1. प्लस 1 ऊपर की तरफ, नीचे दोनों साउंड हमें सुनाई पड़ती है. Whether amplitude is minimum or maximum, we get the louder sound. इसलिए माइनस भी लेते हैं. इसको प्लस माइनस लिया, और therefore this term will be प्लस वैल्यू किसकी होती है 0, माइनस 1 पाई की होगी, फिर प्लस 1 2 पाई की होगी, सो ऑन n पाई होगा. इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई will give you the value plus minus 1 of cos theta. इसको पाई तो सब जगह कैंसिल हो जाएगा, ये वाला टर्म नीचे भेज देंगे. 0 by f1 minus f2, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा. पाई गेट्स कैंसिल एवरीवेयर. दिस साइड आल्सो ऑलमोस्ट सिमिलर टू द स्टैंडिंग वेव्स की थ्योरी, वैसी ही है ऑलमोस्ट. वहां पर हम लोग लोकेशन ऑफ मैक्सिमम मिनिमा निकाल रहे थे, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड एंड मिनिमम एम्पलीट्यूड निकाल रहे थे. यहाँ पर टाइम इंटरवल निकाल रहे हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम का. ऑलराइट, तो टाइम इंटरवल बिटवीन टू मैक्सिमा आल्सो कॉल्ड
टाइम पीरियड ऑफ बीट्स, इनको बीट्स का टाइम पीरियड भी बोलते हैं। डिफरेंस ऑफ टू दिस माइनस दिस, तो ये आ गया 1 minus f1 by f2. f1 is the frequency of first wave, f2 is of the second wave. This is nothing but a 1 upon f1 minus f2. ये टाइम पीरियड है, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, टीवी स्टैंड्स फॉर टाइम पीरियड। तो दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये ऊपर आ जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट इज नथिंग बट ए फ्रीक्वेंसी डिफरेंस ऑफ टू वेव्स। दोनों वेव की जो फ्रीक्वेंसी डिफरेंस होगी उतनी बीट्स सुनाई पड़ेंगी, मतलब उतनी मैक्सिमम साउंड हमें इन 1 सेकेंड, दैट मेनी मैक्सिमम साउंड इन 1 सेकेंड। यहाँ पर देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स का मतलब ये है दैट मेनी मैक्सिमम साउंड्स पर सेकेंड, और मिनिमम साउंड भी, बीच में मिनिमम भी आता है उसमें। इसको डिफरेंस लिख सकते हो सकता है f2 बड़ा हो, f2 माइनस f1 लिखना पड़ेगा। तो डिफरेंस ऑफ टू सॉरी डिफरेंस ऑफ टू फ्रीक्वेंसीज गिव्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट, मैक्सिमा के लिए भी और मिनिमा के लिए, और मिनिमा मिनिमा से मिनिमा तक काउंट करो, दैट विल बी टाइम पीरियड, और मैक्सिमा से मैक्सिमा तक काउंट करो, दैट विल बी टाइम पीरियड। उसको रेसिप्रोकल कर दो तो फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स बोलते हैं। ऑलराइट, तो क्या मिला हमें, एंड रिजल्ट क्या मिला, ये इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं, दोनों का डिफरेंस है ना, डिफरेंस ऑफ टू बिगर वन, डिफरेंस में बिगर वन यू टेक फर्स्ट। ऑलराइट, नाउ वी विल अंडरस्टैंड बाय डायग्राम। डायग्राम में देखते क्या हो रहा है एक्चुअली। ये एक वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी f1 है ना, तो यहाँ पे टाइम के साथ उसका ऑसिलेशन दिया हुआ है। दिस इज अदर वेव जिसकी फ्रीक्वेंसी f2 है ना, उसका भी टाइम के साथ दिया हुआ है, एम्पलीट्यूड 1 तक ऑसिलेट हो रही है, 1 तक। ऑलराइट, नाउ इनका देखो विद रिस्पेक्ट टू टाइम उनमें फेज डिफरेंस जनरेट होगा। यहाँ पे देखो ऑलमोस्ट इसका फेज, इट इज वाइब्रेटिंग डाउन, इट इज वाइब्रेटिंग अप, अपोजिंग, दे आर अपोजिंग टू ईच अदर, तो उनका एम्पलीट्यूड 0 हो गया। यहाँ पे देखो इसका भी 1 था, इसका भी 1 था, 1 वाज लाइक दिस, अदर वाज, एक की वाइब्रेशन ऊपर है इसके, दूसरे के नीचे है। ऐसे देखा था हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में, ऐसे व्हेन दे सुपर इम्पोज द फ्लैट हो जाती है रो, ऐसे यहाँ भी दिस इज अप वाइब्रेशन, दिस इज डाउन वाइब्रेशन, 180 degree out of phase, cancel the effect of each other. Again, standing there only, you are standing at one place and listening. So after few microseconds, यहाँ पे देखो, this is maximum, this is maximum, उसका एम्पलीट्यूड भी मैक्सिमम 2 आ गया, देखो ना, 1 1 मिलके 2 है ना, a plus a is equal to 2 है। It is also going up also, going down also, इसलिए प्लस माइनस 2 है ना। ऐसे ही अगेन आउट ऑफ फेज हो जाएंगे ये, ऐसे ही इट विल गो ऑन। जहां पर दोनों आउट ऑफ फेज है, एक में वाइब्रेशन डाउन है, एक में अप है, तो वहां पे मिनिमम साउंड सुनाई पड़ेगी, और जहां पर दोनों एक सेम फेज में है, मैक्सिमम साउंड सुनाई पड़ेगी। यहाँ से यहाँ तक का देखो, आइदर यू टेक मिनिमम टू मिनिमम, टाइम पीरियड ऑफ बीट में, टाइम पीरियड ऑफ बीट रहेगा ये, और यू टेक मैक्सिमम टू मैक्सिमम, यहाँ से यहाँ तक ले लो टाइम पीरियड ऑफ बीट। तो अगर तुम्हें, ओके ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट सुना है, ओके, आई एम टेलिंग यू वन एक्स्ट्रा पॉइंट हियर। अगर तुम्हें सपोज इसकी फ्रीक्वेंसी, ओके, विल सी इन द क्वेश्चन, दिस इज क्लियर, थ्योरी पार्ट इज क्लियर। तो इट इज द फिनोमेना ऑफ सुपरपोजिशन of two waves of nearly same frequency difference is very small, so we get the maximum sound and minimum sound. It is called waning and this is called waxing. नहीं, waning means कम है, waning means low value है ना, मून की भी waning होती,
वैक्सिंग वेनिंग, है ना, मैक्सिमा मिनिमा. तो that phenomena is called beat phenomena, है ना. तो बीट फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो we'll see this question. Clear? तो theory part clear. It is almost similar to the standing wave. उसमें हमने लोकेशंस निकाली थी मैक्सिमा मिनिमा की. यहाँ पर टाइम इंटरवल, you stand at one location and you hear the regular rise and fall of the sound. And उसमें क्या करना पड़ता है स्टैंडिंग में, इसमें लोकेशंस चेंज करनी पड़ती. At one location it is no vibration, that is called notes, and another location maximum vibration, anti-notes, and so on. Alright. ठीक है. This is the diagram of NCR river. We can solve this question also. Can you see the question written at the bottom? If two waves given by y1 is equal to a sine 510t and y2 is equal to a sine 500t, then find number of beats per minute. Okay, solve this question. Are you there? तुम लोग हो लाइन पर? Yes, sir. Solve करो इसको. Yes, sir. Good question. What is this term called? ये क्या है? 510 is what? Okay, इसमें hold on, just hold on. एक करेक्शन कर देता हूँ कैलकुलेशन इजी करने के लिए. यहाँ पर पाई भी लगा देता हूँ. 510 pi t. Here also 500 pi t. You will have in round figures. Calculation थोड़ा इजी हो जाएगा. Come on, now do it fast and tell me. So 5 pi is what? Representing what? Coefficient of t is called omega
omega 1 will be from equation 1. From equation 1, omega 1 is how much? 5105. यहाँ से क्या मिल जाएगा? F1 मिल जाएगा. Coefficient of T is called omega, or omega can be written as 2 pi F1. Pi gets cancelled. F1 is how much? 255 hertz. From 2, omega 2 is 500 hertz. यहाँ से क्या मिलेगा? F2 में जाएगा 250 hertz. क्या आंसर क्या होगा बोलो? Therefore, tell me the answer now. Quick answer बताओ जल्दी से. Now you just respond. You are not responding. None of you are is responding. Sir, 5. कैसे? Therefore, Sir, beat frequency. subtract. FB is difference of both. F1 difference, F2. So 255 minus 250 is 5 hertz. But this is not. Is it the right final answer? No, it is not the final answer. It is not the correct answer. बोलो क्या करना है? Correct answer के लिए क्या करना है? This was the question asked in NEET का question नहीं. What should be the correct answer? ये per second है. These are the beats per second. इसको क्या बोलेंगे? Hertz लिखो या beats per second. एक सेकेंड में इतनी beats. But how? Sorry. How many? In how much time we want the beats? Per minute चाहिए. Therefore, beats in 1 minute. 5 into 60. 300 beats. मतलब 300 times आपको मैक्सिमम साउंड सुनाई पड़ेंगे. और मिनिमम, बीच में मिनिमम भी होंगे. Can I add one part in this? तो मेरा second part इसमें ये है. From my side, I am adding one part. Find minimum time between minimum time और time दोनों एक ही बात है. Between two successive waning and waxing. 2 successive waning and waxing. 2 This point is important, which is generally not found in the book. ऐसे क्वेश्चन नहीं दिखते बुक में. Maybe ask.
Okay. Can you hear me now? Yes, sir. Please make me host, Aparajita. Okay. We'll continue. Clear? How far we have seen? यहाँ तक हो गया था? Okay. This part is done. Again, there is some problem. Okay. Sir, you Can you were hear me? starting with the second part. Okay. Second part is just a minute. It is not working. Hmm. Can you see the second part written here? Okay, and just I am not able to operate my pencil in fact. Just a minute. Huh? Okay. Can you see? No. Oh, sir. Okay, that's The good. screen is not visible. Okay, just reconnect it.
Can you hear me now? Yes, Aparajita, sir. please make me host now. I restarted my system. Done, sir. Okay. Okay, we are discussing this question. And now second part is find the time between two successive waning and waxing. All right. So mother time, um, if we get the time period of two successive maxima, then we'll make it half. So time period of two successive maxima, that is called time period of beat, is reciprocal of beat frequency. अभी हमने derivation किया था. So beat frequency already we have got from here. This is the beat frequency. Can you see? तो उसको reciprocal कर लिया. So Yes, time sir. between two successive maxima we have got 0.2 seconds. ये देखो यहाँ से यहाँ तक successive maxima का ये वाला. और you can see this one. इसको आधा कर देंगे, ये हो जाएगा इतना. या टू सक्सेसिव मिनिमा का निकाल लो, दैट इज आल्सो कॉल्ड बीट पीरियड. उसको हाफ कर दो इतना. तो इसको हाफ कर देंगे, टीवी बाई टू कर देंगे 0.1 सेकेंड. तो every after 0.1 second we'll hear the maximum sound, then minimum, maximum, minimum, like this. Got it? Now we'll do the second part of second application. I mean, इसका जो application है, determining the unknown frequency, that questions we are going to do. उसमें हमें ये याद रखना है, सपोज ये ट्यूनिंग फोर्क है, उसमें अगर हमने टेप लगा दिया इधर, if we apply wax or tape, if wax or tape is applied, then its frequency will decrease because its weight is increasing. Weight in tuning fork का weight बढ़ने से it oscillates slowly. तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, ये याद रखना है. अगर हमने फाइलिंग कर दिया तो फाइलिंग मतलब उसको रबिंग करना. इन केस ऑफ फाइलिंग, ये फर्स्ट पॉइंट था. इन केस ऑफ फाइलिंग, its weight will decrease and its frequency will increase, and frequency will increase. And in case of string, frequency is directly proportional to under root of tension. टेंशन बढ़ाया तो फ्रीक्वेंसी बढ़ी, टेंशन कम किया तो फ्रीक्वेंसी घटी, है ना. फुल फार्मूला वाज दैट. इन केस ऑफ स्ट्रिंग फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वाज 1/2 पाई अंडर रूट एल बाई म्यू. ठीक है. तो उससे भी फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हैं, टेंशन बढ़ा घटा के. गिटार वगैरह से ताल वगैरह में से करते हैं, टेंशन चेंज करते हैं, फ्रीक्वेंसी चेंज होती है उसकी. तो these are the points which will help you in numerical. Let's see the 2-3 numericals based on this, which are very important again. जैसे ये वाला क्वेश्चन नंबर 6 सॉलिड एग्जांपल है. two sitar strings A and B playing the note dha are slightly out of tune and produce the beats of 5 hertz. The tension of the string B is slightly increased and the beat frequency is found to be 3 hertz. जो पहले जो beat frequency दी होती है उसी में आंसर रहता है. 50% of the answer is known.
in the first line itself. बाद में चेंज किया जाता है, बाद में, तो इसी से आंसर निकलता है। देखो, what is the original frequency of B? The frequency of A is 427. B की निकालनी है, B की F2 ले लो, F1 A कीजिए, F1 427 हर्ट्ज, F2 निकालना है B की। तो यहां से देखो, since beat frequency is difference of F1 and F2, therefore F2 will be F1 plus minus FB, ऐसा बनेगा, क्योंकि F1 इस गिवन हमें, जो बीट है इनिशियल बीट 5 का है ना, बीट कितना दिया है, FB इनिशियली दिया है 5 हर्ट्ज, उसी से अपना आंसर निकलता है। तो F2 जो है, B की फ्रीक्वेंसी, F1 is 427 plus 5, either it can be 432 or 427 minus 5, or it can be 422. इन दोनों में से एक आंसर हो सकता है, either this or this. तो 50% answer is known. Check up the options given first. Suppose you are going for objective multiple choice है ना, अगर दोनों ही ऑप्शन दिए हैं तो फिर तुम्हें फर्दर चेक करना है। एक ही ऑप्शन दिया है तो दैट यू कैन जस्ट इजीली टिक मार्क। नाउ बोथ द ऑप्शंस विल बी गिवन। तो अभी हमें क्या करना है, नाउ दे आर गिवन द स्ट्रिंग टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग बी स्लाइटली इंक्रीज। बी का अगर हमने टेंशन बढ़ाया तो बी की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, नंबर ऑफ बीट्स नाउ डिक्रीजेस टू 3। तो इसके लिए क्या करते हैं, अभी हम एक रफ डायग्राम से इसको कंक्लूजन ड्रा करते हैं, बिकॉज ये थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन होता है। नाउ ए जो गिवन है ना फ्रीक्वेंसी, वहां पे हमने इसको बीच में लिख दिया। ए की फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है, 427। बी की या तो ये हो सकती है, उसके ज्यादा हो सकती है या कम हो सकती है, और दिस either it can be 432 or it can be 422। ठीक है, तो ये दोनों में से एक हो सकती है। अभी पता करने के लिए हम सेकंड लाइन पढ़ेंगे। what we are doing now, string B जो है, टेंशन बढ़ा, F2 is directly proportional to टेंशन। तो टेंशन बढ़ाने से F2 will go up, जो भी उसकी वैल्यू होगी, 32 होगी तो उससे ऊपर चली जाएगी, 22 होगी तो ऊपर चलेगी, दोनों में से इट विल इंक्रीज, करंट वैल्यू उसकी इंक्रीज हो जाएगी, है ना, यही तो बोला ना, द टेंशन ऑफ बी इज स्लाइटली इंक्रीज। तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाएगी, अगर 432 है तो उससे बढ़ जाएगी, 422 है तो इट विल फर्दर इंक्रीज। तो अगर हमने एज्यूम किया ये 432 है इनिशियल वैल्यू, तभी यहाँ तक ये डिफरेंस देखो, ये डिफरेंस 5 का था, यहाँ से देखो ये 5 बिट्स का डिफरेंस था, इधर भी पहले 5 का था, है ना। नाउ if you are increasing the frequency of beat of B by increasing the tension, ठीक है, तो अगर तुमने सोचा 432 है तो अभी उसका इतना हो जाएगी फ्रीक्वेंसी। तो बीट्स आर इंक्रीजिंग नाउ, पहले 5 थी, नाउ इट हैज गॉन अप, बट यहाँ पे 3 दे रहा है, इसका मतलब लोअर वैल्यू होगी। इफ यू इंक्रीज द टेंशन 422 से बढ़ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी उसकी फ्रीक्वेंसी, नाउ बीट फ्रीक्वेंसी विल डिक्रीज। ये तो फिक्स है, एक को हम कुछ कर नहीं रहे, you have to take the lower value, because if increase somewhere here, F2 will come somewhere here। पर अभी डिफरेंस जो है डिक्रीज हो गया, पहले 5 का डिफरेंस है देखो, तो नाउ दे आर गिविंग 3 का डिफरेंस लेने के लिए 422 होनी चाहिए। therefore since beat frequency is decreasing, on increasing the tension of B, therefore its initial frequency will be 422। clear?
फिर से सुन लो, चलो ये क्वेश्चन देखो, लिसन अगेन, क्वेश्चन आई एम एक्सप्लेनिंग देन वाइंडिंग अप। देखो, two sitar strings A and B playing the note the are slightly out of tune and produce the beat frequency of 5 hertz, ठीक है। और इसमें क्या दिया है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इज गिवन 427। तो ये फार्मूला बनाया, डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड बीट फ्रीक्वेंसी। F2 को इधर ले आएंगे, F1 FB को इधर ले आएंगे, पर दोनों पॉसिबिलिटी होती है। बीट फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस 5 का डिफरेंस है बस 1 के साथ। ये F2 कैन बी ग्रेटर आल्सो, लेसर आल्सो, डिफरेंस है ना। F2 कैन बी 5 मोर और 5 लेस, 427 से 5 मोर और 5 लेस, दोनों केसेस में 5 बीट सुनाई पड़ेगी। तो इसलिए प्लस माइनस लिखते हैं यहाँ पर। तो ए का 427 था, प्लस लिया तो ये 432 आ गया, माइनस लिया तो 422 आ गया। इन दोनों में से एक आंसर होता है ना, वन ऑफ द आंसर इज हिडन इन दिस। तो उसको करेक्ट किया है, उसको नेक्स्ट लाइन पढ़ेंगे अभी। टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग बी स्लाइटली इंक्रीज, तो बी का टेंशन इंक्रीज किया तो उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। सपोज हमने 432 एज्यूम किया तो यहाँ पहुंच जाएगी, इट विल बी इंक्रीजिंग, डिफरेंस विल बी इंक्रीजिंग। तो बीट फ्रीक्वेंसी 5 का डिफरेंस था पहले, तो अभी बीट जो है बढ़ जाएंगी अगर हमने 432 होगा तो 422 होगा, हमने टेंशन बढ़ाया, इसकी फ्रीक्वेंसी विल गो अप, ए के साथ उसका डिफरेंस कम हो जाएगा, डिफरेंस इज कॉल्ड द बीट। न्यू बीट फाउंड टू बी 3 है, इसका मतलब लोअर वैल्यू इज पॉसिबल। इफ इंक्रीज द टेंशन then its frequency will be increasing from 422 slightly up, और इसके साथ फ्रीक्वेंसी, इसके साथ बीट फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस कम हो जाएगा, बीट विल बी रिड्यूस लेस, आई विल बी हर्ड लेस, 3 सुनाई पड़ेंगी, बिकॉज डिफरेंस इज डिक्रीजिंग। और फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो तो 0 हो जाएगा, नो बीट्स विल बी, और टेंशन बढ़ाओ धीरे धीरे, नो बीट्स विल बी हर्ड। अगर मैं क्वेश्चन बोलता, देखो इसी क्वेश्चन में लिसन वेरी केयरफुली, if I say सेकेंड केस में भी 5 बीट्स आर हर्ड, फर्स्ट में भी 5 था, सेकेंड केस में भी 5 बीट्स आर हर्ड, कभी भी आंसर यही होता 422। कैसे? कीप इंक्रीजिंग द टेंशन, इसकी जब इसकी 422 से 427 हो जाएगी तो 0 हो गया अभी, और बढ़ाओ, फिर जब 432 हो जाएगी फिर से 5 सुनाई पड़ेगा, 422 से इंक्रीज करते जाओ, 432 तक लेके जाओ इसको, स्ट्रिंग बी की फ्रीक्वेंसी टेंशन बढ़ा के, फिर से 5 बीट सुनाई पड़ सकती है। अगर 432 एज्यूम किया तो ये तो एक ही डायरेक्शन में बढ़ता चला जाएगा, बीट डिफरेंस विल बी इंक्रीजिंग कंटिन्यूअसली, एक के साथ डिफरेंस उसका बढ़ता चला जाएगा। लोअर वैल्यू इज नॉट पॉसिबल, आई मीन अपर वैल्यू इज नॉट पॉसिबल, लोअर वैल्यू ही पॉसिबल होगी। आर यू गेटिंग इट और नॉट? बाकी क्वेश्चन हम लोग, बाकी क्वेश्चन इसको थोड़ा समझो, रीड इट, अगर नहीं भी समझ में आया जस्ट आफ्टरनून अगेन वी आर गोइंग टू डू सम मोर क्वेश्चंस ऑफ दिस, these are the questions are important questions. I'm ending it now. Do you have any other class? No, sir, we have our school classes. Okay, then just I am closing, you can just log out.